Hello everyone, my name is Akanksha Ranjan and I have qualified UGC NET in law in 2022 attempt with 232 marks out of 300. And today this video is dedicated to the previous year question sequence, and the first part is jurisprudence. And the previous year questions of jurisprudence was getting very long, so I have divided it into two parts. So part one is here and part two will be coming very soon, because I have to complete like all the series of previous year questions before this particular exam that is coming soon. So let's start with this video, and in this video we will be discussing the previous year questions of 2018 and 2019, and the further years I will be discussing in the next part for sure. So let's start with the video. So in this video I'll be discussing about कि जैसे previous year questions आप कहते हैं ना कि previous year question से शुरू करो, previous year अगर कम time है तो previous year जरूर करके जाओ, है ना. तो previous year हमें करना तो है for sure, but कैसे करना है. जैसे जो question आ चुका है वो question दोबारा आने के chances होते हैं, but it is not कि हाँ paper में mostly questions repeated होते हैं, ऐसा नहीं होता है, but the concepts get repeated. So instead of going for all the syllabus of jurisprudence, what you can do is you can go to the question. For example, this is a question of jurisprudence which was asked in 2018. So the probability of coming this particular question again is less, but from this concept it can be asked, it is highly probable. So how you will go towards this question, these type of questions previous year, that I will definitely tell you about in this video. So the first question is, which one of the following jurists distinguished between expositorial jurisprudence and censorial jurisprudence? So if you have read about jurisprudence like during college days, you must have read about these things, ki what law is, what law ought to be. But who said this? So like there are different people who have said different things in different schools and different theories, right? So here the answer for this particular question is Bentham, right? Now Bentham has distinguished between censorial jurisprudence and expositorial jurisprudence. This you have read in this previous year questions. Now you can Google it, or you can read in your books that what do you understand by expositorial jurisprudence, what do you understand by censorial jurisprudence, plus what other things that Bentham have said that I have not mentioned in my explanation, but you have to go and search that what there will be 4, 5, 6 points that Bentham have said. He has said about a utilitarian principle, etc. तो आपको उन सब प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेना है, जो भी उसने मेन मेजरली दिए हुए होंगे वो आपको ये देख लेना है कि वो कौन से स्कूल को बिलोंग करता है एटलीस्ट, है ना. तो ऐसे करके आपका क्या होगा कि जैसे ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें 4 दिए हुए थे ना ऑप्शंस, तो ऑस्टिन था, केल्सन था, बेंथम था, हार्ट था. तो आपको ऑस्टिन के क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स है, मेन बातें जो उसने कही है, और कौन से स्कूल से वो बिलोंग करता है, और वो स्कूल पहले आया था कि बाद में आया था वो. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा. बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको रट नहीं लेना ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खाली करके जाना है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाते हुए आपको पढ़ाई करनी है. जैसे ये बेस हुआ ये क्वेश्चन, तो आपको फिर इन लोगों के बारे में जानना है, कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो कि हाँ कितने स्कूल्स हैं, कौन कौन है, सारे के सारे पढ़ने हैं, अभी उतना टाइम नहीं है, राइट. तो दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू हैव व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट. सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज बेंथम, ऑप्शन 3. And I have included the explanation, that is what is expositorial, that is it is concerned with the law, and what is censorial, it is what the law ought to be. One more thing that I can add right now is Bentham has given utilitarian principle, and what is utilitarian principle? Maximum happiness, that is the point of utilitarian. Now like this you will approach the previous year question.
That is the main point of me starting this series of PYQ, that you will understand how can you deal with these previous year questions when you start with. Now, the second question is, now natural law is not considered as absolute but as relative. It is natural law with variable contents. Who said this, right? So the answer for this is Stamler. Stamler has given this particular statement. Now, हमें पता है कि जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं कि ये किसने कहा, वो किसने कहा, जो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जैसे एक लिस्ट बना ली थी, है ना? और उस लिस्ट में मैंने जैसे कि एनालिटिकल स्कूल है ना? तो उसका एक कॉलम बनाया, नेचुरल स्कूल का एक कॉलम बनाया, सोशियोलॉजिकल का एक कॉलम बनाया। फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते गए, जैसे कि इसमें स्टैमलर ने ये कहा, तो फिर मैंने सर्च किया कि स्टैमलर कौन से स्कूल को बिलोंग करता था। फिर मैंने स्टैमलर को स्कूल में डाल दिया लिस्ट में। फिर मैंने स्टैमलर के आगे लिख दिया, और ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, राइट? तो मैं इसका अगर कोई छोटा सा वर्ड भी ले लूं जिससे मुझे पता चल जाए तो वो काफी है। तो मैंने इसमें से वेरिएबल कंटेंट ले लिया था, वही मेमोराइज किया था कि स्टैंडर्ड वेरिएबल कंटेंट दिस पर्टिकुलर स्कूल। सो लाइक दैट यू कैन do for all the statement that you come across in the previous year questions. Right now you can do that to make a list. It will be easy for you to revise from that list, and it will be easy for you to memorize also, because jurisprudence, it gets difficult to memorize those things. So this is the Stamler. Now I have included some points about Stamler, that what he was like saying, from which school he was, and natural law, etc. So I have included this particular part. Like this you have to go for all the PYQ. Don't just read the question and read the answer, because that is not going to get repeated. Like it will get repeated, like it is very least probability, राइट? तो आपको ऐसे पढ़ाई उसके लिए डीप में करनी पड़ेगी कि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा, उसमें जिसका भी नाम आपको मिला, जैसे एक का मैंने स्टैमलर का इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है, उसके अलावा भी उसमें कुछ दिए हुए हैं ना, जैसे इसमें डेविन दिया हुआ है, फिनिस दिया हुआ है, एक्विनास दिया हुआ है। तो आपको इन सब के बारे में सर्च कर लेना कि कौन कौन से स्कूल से हैं, उसकी लिस्ट में डाल देना, उसने क्या क्या कहा है। मेन ज्यादा पॉइंट्स होते नहीं है इनके, जो हमें मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी। हमें जूरिस्प्रूडेंस में कभी कुछ दिख जाता है आंसर, कोई कभी कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं, अलग अलग स्कूल से होते हैं, अलग अलग बातें कह रहे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो याद नहीं रहता है ना। तो हमें, अगर हम इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना, तो इट इज वेरी वेरी इजी। एंड आई हैव माई नोट्स जिसमें मैंने ये सब किया हुआ है। तो अभी तो मैंने, ये पॉसिबल नहीं हुआ कि इसके साथ में उसको ऐड कर दूं, बट लेटर ऑन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ऐड माई ओन नोट्स टू दैट, कि मैंने जो वो किया है। बट ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, ट्राई टू रिसर्च ऑन योर ओन, दैट विल हेल्प टू मेमोराइज। आप अगर खुद से सर्च करते हो ना गूगल पे, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है, और आपको वो मतलब समझ में भी आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं अगर चीजें संभाल के रखूंगी अपने घर में, तो वो आपको नहीं समझ आएगा कि मैंने क्या रखा है, कहाँ रखा है। अगर मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी दूंगी फिर भी आपको दिक्कत होगी देखने में, ढूंढने में। बट आपने खुद से सजाया होगा पूरा घर, तो आपको पता होगा ये डब्बा वहां पे रखा है, वो वहां पे रखा है, लाइक वाइज। तो मेक योर ओन नोट्स एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स इन जूरिस्प्रूडेंस स्पेशली, क्योंकि इसमें याद करना मुश्किल होता है कि किसने क्या कहा था। Now, this is Professor Hart. What is the meaning of positivism, right? तो इसमें हमें questions में different different statements दिए हुए हैं. This is not a direct question कि हाँ ये किसने कहा था, है ना? तो अब हमें इसमें positivism क्या होती है, अब इस क्वेश्चन को हमने देखा, इसमें हमें 4 पॉइंट्स मिले। अब हमें इसमें से पहले तो आंसर अगर हमें पता है, तो उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करके अंदाजा लगाएंगे कि आंसर क्या है। आंसर अगर सही है तो ठीक है, आपको पता है। नहीं सही है तो आप सही आंसर देखो, फिर उसमें देखो कि अच्छा ये पॉइंट कहा है हार्ट ने पॉजिटिविज्म के बारे में। मेक अ नोट ऑफ इट। हार्ट कहाँ से बिलोंग करता था, हार्ट ने लॉ एंड मोरालिटी के बारे में क्या कहा था, और हार्ट के अलावा कौन था जिसने लॉ एंड मोरालिटी के बारे में कहा था, पॉजिटिविज्म के बारे में और कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है, ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पॉजिटिविज्म जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्ट जो थियरिस्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जस्ट डोंट read these points, try to explore other points as well. Then now this is the answer for this particular question, that all statements are correct.
Now I have added some explanation to this that about positivism, what Hart has said. So this is the research I have done कि हाँ ये बातें पॉजिटिविज्म के बारे में हार्ट ने कही थी. इसके आगे आप और रिसर्च कर सकते हो कि हार्ट ने और कौन कौन सी बातें कही थी, हार्ट के अलावा कौन इस बारे में बात करता था, ये लोग कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे. जस्ट एड ऑन टू योर लिस्ट दैट यू आर गोइंग टू मेक. So this is the thing. Now this is a very classic type of question जो आपको हर साल मिलते हैं. दिस ईयर भी था जब मैंने अटेम्प्ट किया था, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपको अलग अलग थियोरीज दी होती है और कौन से जूरिस्ट ने कौन सा थियोरी दिया है ये दिया होता है. तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको चार चीजें मिल जाती हैं कि हाँ ये चार थियोरीज इन चार लोगों ने दी है, ठीक है, इनमें मैच करके मिल जाएंगी. अब आपको इसमें जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो ना तो ऐसे करना होगा कि मैंने जैसे किया था मैं वो बता रही हूँ. जैसे मुझे एक पहला ये क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर में मैचिंग का, तो अब इसमें थियरीज एंड जूरिस्ट है. मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई थी जिसमें थियरीज के नाम लिखे थे और जूरिस्ट के नाम लिखे थे, ठीक है. तो अब यहाँ से मुझे चार मिल गए, बाकी पेज मैंने खाली छोड़ दिया वहीं पे ही, ठीक है. और अब मुझे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे भी मिलेंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग मिलेगा या खाली थियरी भी मिलेगी कि हाँ ये कौन से जूरिस्ट ने ये थियरी दी, तो मैं उसको जब अटेम्प्ट करूंगी तो आई विल ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग इन माय नोट्स, है ना. तो इस तरीके से मुझे पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी एट द एंड ऑफ द टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ जिसमें आप तैयारी कर रहे हो. आपको पूरी लिस्ट होगी एक जिसमें बहुत सारी थियरीज होंगे, बहुत सारे जूरिस्ट होंगे. वो आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा और उसमें आपका मतलब 90% काम हो जाएगा. दैट वुड बी इनफ. और आपको वो याद भी रहेगा. आप डे टू डे कभी भी उसको उठा के एक बार देख लोगे ना ऐसे, तो वो कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा. इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि ये याद नहीं होता है. अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना, तो ये मैंने चार चीजों के बारे में लिख दिया है कि हाँ ऐसे नोट्स में आपको बनाना है. पूरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू है. जस्ट मेक स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, ट्राई टू लाइक छोटे फॉर्म में आप नोट्स बनाने की कोशिश करो कि आप हिंट वर्ड की तरह एक छोटा सा वर्ड लिखो, उससे आपको समझ आएगा कि उसका मतलब आप क्या समझते हो. जैसे कि यहाँ पे आप बस लिखोगे सॉलिडारिटी, तो आपको पता होगा कि आप सोशल सॉलिडारिटी के बारे में पढ़ा था और डगिट ने दिया था. वैसे ही कैटेगरिकल इम्पेरेटिव कांट ने दिया था, इम्पेरेटिव थियोरी ऑफ लॉ ऑस्टिन ने दिया था, थियोरी ऑफ लिविंग लॉ एलरिच ने दिया था. अब यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि आपने यहाँ पे थियरीज की लिस्ट बनाई है ना, अब इसमें जो जो जूरिस्ट हैं वो भी किसी स्कूल से बिलोंग करते होंगे, राइट. जैसे कि ऑस्टिन है, आपको पता होगा कि कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, एनालिटिकल स्कूल, राइट. तो वैसे आप इनको फिर उठा के उस स्कूल्स के उसमें भी रख सकते हो, फिर इन्होंने क्या कहा वो भी लिख सकते हो. तो ये सब बहुत शॉर्ट में, मतलब हमें लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस बहुत लेंदी है, ऐसा है वैसा है, बट आई प्रॉमिस यू कि जब आप इसके नोट्स ऐसे शॉर्ट में बनाओगे ना, तो मतलब 10 पेज मैक्सिमम है. 10 पेज बहुत मैक्सिमम है. आपका पूरा जूरिस्प्रूडेंस यूजीसी नेट के लिए बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा. क्योंकि ये मैंने खुद से किया है, मुझे पता है. मुझे मुझे भी जूरिस्प्रूडेंस से बहुत ज्यादा डर लगता था और जूरिस्प्रूडेंस में भागती थी कि चलो इसको बस कैसे भी हो जाए बाकी सब मैं कवर कर लूंगी, ये नहीं होगा मुझसे. बट फिर जब मैंने ये ऑर्गेनाइज करके और एक पैटर्न फॉलो किया तो फिर मुझे इजी लगने लगा. बिकॉज एक टाइम के बाद ये सब रिपीट होने लगते हैं. दिस क्वेश्चन, इसमें से कोई एक पॉइंट बहुत जगह रिपीट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही आगे. तो इस तरीके से आपको फिर एक टाइम आएगा, आप थोड़े थोड़े पीवाईक्यू करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़े नोट्स बनाओगे ना, एक टाइम आएगा आपको सारे ऐसे रिपीट होते दिखेंगे. तो इट इज वेरी नॉट वेरी डिफिकल्ट आई वुड से. अगर आप इस पे एफर्ट डालोगे तो इट इज वेरी इजी टू एक्सेल दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. So now, this is again another type of match the following, which is very classic type of question in UGC NET. इसमें क्या होता है कि आपको बुक्स की लिस्ट दी होती है, ऑथर की लिस्ट दी हुई है ना. आपको बताना है कौन सी बुक कौन से ऑथर की है. सिमिलरली जैसे आपने वहां पे किया था वैसे आप यहाँ पे भी करोगे, एक लिस्ट बनाओगे पूरी बुक्स और ऑथर्स की, ठीक है. और अब मैं आपको लगेगा मैं बहुत सारे लिस्ट बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है. ये आई थिंक 5-6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, तो समझ लो 5-6 पेज की वो होंगी नोट्स. और उसी एक एक पेज में ही आपको जितने पीवाईक्यू मिलेंगे उसकी रिसर्च होगी, सब एक पेज में आप छोटे 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 करके लिख सकते हो. मैंने लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही कि मैंने उसको कैसे लिखा है, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू मेक योर ओन नोट्स कि आपको किस तरीके से करना है. अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे ग्रोथ ऑफ लॉ है, तो ये हमारा दिया था किसने, कार्डोजो ने.
फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, हॉल, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, ग्रे, टेकिंग राइट सीरियसली, डॉर्किन। ऐसे करके आप इसकी पूरी लिस्ट बना लोगे कि कौन सी बुक किसने लिखी है। अब एक इंसान ने बहुत बार है कि 4-4 बुक लिखी हुई है, तो आप जब एक नाम लिखोगे ना, उसी के सामने आप 4 नाम लिख दोगे और ऐसे करके आप मेमोराइज कर सकते हो कि हाँ, इस इंसान ने ये 4 बुक लिखी है। इसमें फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे कि वहां पे भी ये आ रहा है, वहां पे भी ये आ रहा है, अब ये कैसे होगा, है ना। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो प्लीज, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये पक्का आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जूरिस्प्रूडेंस में, अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे। अब ये है जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 2 मेन थियरीज ऑफ लीगल राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप इसमें आंसर पढ़ लोगे कि हाँ, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, और इसमें है विल थियरी और इंटरेस्ट थियरी। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये किसने दिया है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा लिख रखा है कि बेंथम ने इनिशिएट किया इंटरेस्ट थियरी। अब आप पढ़ोगे कि आपका काम है ढूंढना कि विल थियरी किसने इनिशिएट किया। फिर आपको पढ़ोगे कि दोनों का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख रखा है कि जैसे इंटरेस्ट थियरी है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू हैव अ राइट टू वोट इफ समवन इज लीगली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड यू विद द अपॉर्चुनिटी टू राइट टू वोट एंड काउंट योर बैलेट एंड सो ऑन। सो ये आपके इंटरेस्ट में होता है। इस तरीके से आपको खुद से इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या होता है, सो दैट अगर ऐसा आता है कि हु गेव इंटरेस्ट थ्योरी, हु गेव विल थ्योरी, तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। Now this is which of the following is not a theory relating to corporate personality। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपका एक पॉइंट का आंसर है कि हाँ ये नहीं है, लेकिन इसके नोट्स आप ऐसे बना सकते हो कि आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू वुड बी इजीली आंसरिंग दैट क्वेश्चन। अब वो मैं बताती हूँ कैसे। देखो, अब यहाँ पे तो पूछा है कि कौन सा थियरी नहीं है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के उसमें। अब इससे आपको ये पता चलता है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की कुछ थियरीज हैं। ठीक है, अब वो थियरीज क्या क्या है, तो इसमें से जैसे एक होगा आंसर जो कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ से आपको पता चल जाएगा, मैंने लिख रखा है कि कौन कौन सी थियरीज होती हैं। ठीक है, तो ये सारी थियरीज होती हैं, तो इनके अलावा जो भी है वो नहीं है, दैट इज नॉट अ थियरी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शनल थियरी, तो फंक्शनल थियरी थियरी नहीं है। तो आप पढ़ोगे फिक्शन थियरी क्या होती है, आप पढ़ोगे रियलिस्टिक थियरी क्या होती है, आप पढ़ोगे पर्पस थियरी क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए कि फिक्शन थ्योरी सैविग्नी सामन को होलैंड ने दी थी, और ये कहती है कि ओनली ह्यूमन बीइंग्स आर प्रॉपर्ली बी कॉल्ड एज पर्सन्स। ये इस थ्योरी ने कहा है। वैसे ही रियलिस्ट थ्योरी है, पर्सनालिटी थ्योरी है, सिंबलिस्ट थ्योरी है। यू कैन रीड दैट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि सिंबलिस्ट थ्योरी को ब्रैकेट थ्योरी भी कहते हैं, है ना। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रैकेट थ्योरी, या ये पूछ सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देंगे एग्जाम्पल के जैसा, आप बोलेंगे ये कौन सी थ्योरी है। तो आपको सारी थियरीज पता होनी चाहिए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की, और ये बहुत इजी है। आपको पूरे नोट्स जैसे मैंने यहाँ पे इतना लिख रखा है, इतने लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप जस्ट 5 है ना, 5 थियरीज है ना, तो आप 5 थियरीज के एक एक वर्ड बना लो, जैसे कि फिक्शन, कंसेशन, रियलिस्ट, 5 बना लिया। उसके सामने एक एक वर्ड में आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1-2 वर्ड 3 वर्ड में लिख सकते हो कि हाँ, इससे आप क्या समझते हो। फिर आप उसके सामने लिख सकते हो कि किसने दिया था। तो ऐसे करके इतने से में आपका इसका नोट्स तैयार हो जाएगा, पूरी की पूरी थियरीज का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के। तो इट डज नॉट टेक मच टाइम, it takes just a little bit of effort, and it would be like very easy comparative to what we think about jurisprudence। तो आप ऐसे कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपको अगर ये क्वेश्चन मिला तो आपको बस ये क्वेश्चन करके आगे नहीं बढ़ जाना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत रिपीटेटिवली अलग अलग तरीके से एग्जाम में आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जूरल कोरिलेटिव्स का। अब आपको पहले तो ये देख लो कि जूरल कोरिलेटिव्स दिया किसने है। ये दिया है हमें होहोफील्ड ने। ठीक है, तो होहोफील्ड की ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है, पूरी थ्योरी है, ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके आपके लिए इसमें ऐड किया हुआ है इस पीपीटी में, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इजीली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, राइट, ड्यूटी, प्रिविलेज, नो राइट, पावर, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। अब ये जो
8 टर्म्स है ना, इसके आपको ढूंढने हैं कि मतलब क्या होते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है कि अच्छा राइट और प्रिविलेज तो एक ही बात होती है, तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको जाना है, सर्च करना है इनके मीनिंग्स विद एग्जांपल्स। इट वुड हेल्प यू एग्जांपल से समझने में डिफरेंसेस, क्योंकि बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस मिलेंगे बहुत सारी चीजों में इसमें से ना, तो वो क्या डिफरेंस है वो आपको समझना है। विद एग्जांपल दिया हुआ है, गूगल करोगे ना उस पे भी मिल जाएगा, बुक्स नहीं है तो भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये कोरिलेटिव्स होते हैं, है ना, तो जैसे कोरिलेटिव्स होते हैं ऐसे अपोजिट्स भी होते हैं। तो इसी वाले ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसी में जैसे राइट नो राइट है ना, ये अपोजिट में दिख रहा है, ड्यूटी का प्रिविलेज अपोजिट में दिख रहा है, ऐसे पूरा ये कॉन्सेप्ट है जो होफील्ड ने दिया हुआ है। तो अब जैसे कि यहाँ पे पूछा था जूरल कोरिलेटिव कौन सा किसका होता है, तो अब जैसे कि यहाँ पे क्लेम दिया हुआ है, यहाँ पे क्लेम नहीं दिया हुआ है ना, तो क्लेम का मतलब है यहाँ पे राइट। तो आप जब अपना वो बनाओगे नोट्स, तो वहां पे जैसे राइट लिखा होगा हो फील्ड में, तो आप उसके ब्रैकेट में लिख देना क्लेम, क्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड राइट, ऐसा कि आपको ध्यान में रहे कि उसी का नाम ये भी है, ऐसा नहीं कि इस हो फील्ड से कुछ अलग है, ये पूरी क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है। तो अब राइट का कोरिलेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो ड्यूटी होता है ना, राइट के नीचे दिया हुआ है ड्यूटी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ड्यूटी कहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूटी यहाँ पे दिया हुआ है 3rd नंबर पे। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जिसमें आप एक भी पता लगा लो ना, मैथ तो फॉलोइंग क्वेश्चंस में, इवन पेपर 1 में भी अगर आप एक पता लगा लेते हो तो आपको बाकी भी पता लग जाते हैं। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, कंफ्यूजिंग भी होता है अगर उनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी होती है, बट इस वाले क्वेश्चन में इट्स वेरी इजी। अगर आपने क्लेम का ड्यूटी कर लिया, बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है फॉर द होल एग्जामिनेशन, कि जहाँ पे आपको ऐसे मौके मिलते हैं ना कि आपको एक पता करके आंसर मिल रहा है, ज्यादा उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है कि मुझे सब देखना है, सब चेक करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। टाइम कम होता है, ठीक है, तो टाइम के हिसाब से हमें भी कवर करना होता है। तो आपने इसमें जैसे एक देखा तो इससे पता चल गया आपको कि 2 है आंसर, तो आप 2 आंसर करके आप आगे बढ़ जाओगे सीधा। फिर आपका आता है this question is about possession। तो ownership and possession is one of the topic in the law syllabus। ठीक है, तो आपको फिर इससे ये क्वेश्चन किया, इसके बाद आपको जाना है कि पोजीशन क्या होता है, ओनरशिप क्या होती है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, फिर पोजीशन के बारे में किस किसने इंपॉर्टेंटली, मतलब जैसे 2-3 लोगों ने दिया होगा कुछ कुछ डेफिनेशन पोजीशन का। ठीक है, तो आपको वो देख लेना है कि पोजीशन का डेफिनेशन किस किसने दिया है, ओनरशिप का किस किसने दिया है, क्या होता है ये, और इसके थोड़े एग्जाम्पल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर जैसे ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा है वैसे कोई एग्जाम्पल आता है तो आपको पता हो कि हाँ ये एग्जाम्पल इस चीज का है। और जैसे इसमें कॉर्पस और एनिमस होते हैं, पोजीशन में दोनों चीजें होनी जरूरी है। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि एक्स अ सर्वेंट फाइंड अ बैग इन द बेसमेंट ऑफ द शॉप, ही हैंड्स इट ओवर टू द वाई द ओनर ऑफ द शॉप हु आस्क्स हिम टू प्लेस इट इन द अलमीरा। नाउ द बैग इज इन पोजीशन ऑफ whom। तो अभी वाई को दे हैंड ओवर कर दिया है ना, तो आपको पोजीशन का मतलब अगर पता होगा कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होगा कि ये वाई के पोजीशन में आ गया है, क्योंकि उसके पास आ गया है क्या, कॉर्पस और एनिमस दोनों आ गया है। अब कॉर्पस क्या होता है, एनिमस क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कि कॉर्पस पसडेंडी होता है, ऐसा सब वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो वो आप थोड़ा सा सर्च करोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे ना, तो उसमें आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। और इवन इस बार भी इसमें से क्वेश्चन आया था कि ये जो डिफरेंशिएशन है कॉर्पस एनिमस वाला, ये किसने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से जैसे कि कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं ना, तो इस कॉन्सेप्ट्स को उठा के थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको फिर दूसरे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसमें हेल्प होगी, है ना। तो दिस वे, अब दिस इज द लाइक द आंसर का एक्सप्लेनेशन। अब मैंने पोजीशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है जैसे कि आपके लिए, वैसे आपको इसके लिए और भी रिसर्च करनी है, मैंने पूरा रिसर्च नहीं करके डाल दिया है नोट्स, बट हाँ दिस इज इन शॉर्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट। नाउ नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें आपको, दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको असर्शन दिया होता है और रीजन दिया होता है। और आंसर्स में इस तरीके से होता है कि या तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन उस असर्शन का है, मतलब लाइक असर्शन जो हुआ है उसका कारण आर है, ए बिकॉज आर, ऐसा आपको
सोच के आंसर करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन, पेपर 1 में भी होते हैं असर्शन रीजन के। आई होप आपने पहले भी किया होगा, आई थिंक क्लैट में या कभी। तो जैसे कि इसमें असर्शन है कि लॉज आर वैलिड ओनली इफ दे आर जस्ट, ठीक है। और दूसरा रीजन दिया हुआ है द एम ऑफ लॉ इज टू सिक्योर जस्टिस। नाउ द एम ऑफ लॉ इज टू सिक्योर जस्टिस इज अ कॉमन सेंस पॉइंट, जो कि आपको पता है कि ये सही है, ठीक है। तो ये सही है, इसका मतलब है कि 3 आंसर तो पक्का से नहीं है, एलिमिनेशन, ठीक है। नाउ गो टू ए। ए सही है कि नहीं है? तो नहीं, ए सही नहीं है, क्योंकि देयर आर लॉज व्हिच आर अनजस्ट आल्सो। इट डज नॉट हैव टू बी जस्ट ओनली बिकॉज टू मेक इट लॉ, बिकॉज हम कंटेंट तभी करते हैं ना कि हाँ ये अनजस्ट लॉ है या ऐसा वैसा, तो लॉ तो पहले बनता है ना। दैट इज रॉन्ग, तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि लॉ का पर्पस होता है सिक्योर जस्टिस, एंड D is the answer. Now this is again assertion and reasoning. इसमें दिया हुआ है the judges must follow authoritative precedents. Now this is the concept of precedents, कि मतलब जो जजमेंट एक बार आ जाती है उसको कैसे आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर ऐसा बोला है तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर उसको आप कुछ और नहीं कर सकते हो। दैट इज द लाइक इट इज लाइक लॉ प्रेसिडेंट, है ना, कि द जज हैव सेड दिस इन दैट पर्टिकुलर केस, उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही असर्शन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, और यहाँ पे जजेस को ये करना पड़ता है क्योंकि अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम बेसिक पोस्टुलेट ऑफ द लीगल सिस्टम इटसेल्फ। तो हाँ, लीगल प्रेसिडेंट का लीगल सिस्टम में है रूल, और इस वजह से है। तो दैट इज द रीजन व्हाई जजेस हैज टू फॉलो दिस अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, राइट? सो द आंसर वुड बी 1, and this is some of the explanation that I have written for you. Now this is 2019 shift 1. There were 2 shifts, and I have added both the shift in this particular video. So this is again law and morality are complementary and supplementary. Who has said that? Now whoever has said that, write that particular name after the answer in your notes. हार्ट एंड देन हार्ट ने जैसे कि वहां पे पॉजिटिविज्म के बारे में बहुत कुछ कहा था, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो अब वहीं पे आप हार्ट के बारे में ये भी लिख दो कि ये भी उसने कहा था कि लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आप ये भी पढ़ सकते हो खुद से रीड करके कि हाँ लॉ एंड मोरालिटी के बारे में हार्ट ने और क्या कहा था, फिर हार्ट के अलावा किसने कहा था, जैसे कि फुलर ने कहा था, तो फुलर ने क्या कहा था, दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या डिबेट थी, ये आप थोड़ा सा खुद से रीड करोगे और ये आपको हेल्प करेगा आगे वाले एग्जाम्स में। अब ये है अगेन, दिस इज अगेन द थियोरीज जो मैंने पहले बताया था। देखो फिर ये रिपीट हुआ ना, अब यहाँ पे भी सोशल सॉलिडारिटी रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर आपको सॉलिडारिटी का पता है कि ये दिया था डगेट ने, तो आप ये तो पहले ही कर लोगे बी का 2। अब बी का 2 कर लिया तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे 1 एंड 2। अब आपको पता है ए का 1 तो दोनों में दिया हुआ है, तो स्पिरिट ऑफ पीपल तो सैवेग्नी का ही है, बाकी बचा सी और डी। सी और डी में से कोई एक आपको पता होना चाहिए, तो ही आप ये आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिस इज द आंसर। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने नोट्स में इसमें जो जो नए वो आए थियरीज आए जो पहले नहीं किए हुए थे, जैसे सॉलिडारिटी वाला पहले कर रखा था, बाकी जो अभी पहले नहीं कर रखा था ना, वो आपको उसमें उसी लिस्ट में ऐड कर देनी है, ताकि वो आपकी थियरीज की लिस्ट पूरी होती जाए, है ना। अब आता है आपका रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म। नाउ अगेन सी हार्ट का पॉजिटिविज्म हमने अभी अभी वहां पे पढ़ा था कि पॉजिटिविज्म के बारे में कौन कौन सी बातें हार्ट की इसमें से सही है ना। तो यहाँ पे अगेन दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन रिपीटेड, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सी जो है वो नहीं है करेक्ट, डिसीजन कैन बी डिड्यूस लॉजिकली विद रिगार्ड्स टू मोरालिटी, ये हार्ट ने नहीं कहा था पॉजिटिविज्म के बारे में, तो ये नहीं होगा। तो बाकी सब तो है, तो इस हिसाब से ये आंसर हो गया। तो देखो कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है ना, तो इस हिसाब से रिपीट होता है। नाउ ये किसने कहा था? अब ये अगेन इसका आंसर जब आप देखोगे कि ये किसने कहा था कि कोई डिफरेंस नहीं है लीगल पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी एंड इंडिविजुअल, तो जैसे ये कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट हुआ है वो मैं बताती हूँ। अभी हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थियरीज पढ़ी थी ना, उस थियरीज में बहुत सारे थियरीज हैं, तो वो जो 5 थियरीज है उसमें से एक में ये चीज कही हुई है, उसी में आप जब पढ़ रहे होगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये चीज कही है इसने, ठीक है। तो वहां पे आप नोट्स बना लिए होगे अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अच्छे से, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हाँ केल्सन ने ये कहा था, ठीक है।
तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल रिपीट हुआ है दोनों साल में, आप देख रहे हो साफ साफ, और कैसे हुआ है वो भी आप देख रहे हो। नाउ दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। लीगल राइट जो होती है ना, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंटेंट, टाइटल, ऐसे। तो अब यहाँ पे जो है 5 होते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 दिए हुए हैं, ठीक है, और 5वां बताना है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट होता है राइट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है राइट का, ओके, तो कंटेंट भी होता है राइट का, टाइटल भी होता है राइट का, क्या बच गया, तो इनमें से क्या बच गया, प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ नो, एक्ट और ओमिशन दोनों, द लीगल पर्सन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट, सब्जेक्ट तो हमने दे ही दिया, द सब्जेक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, यस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला। अब आप इसमें क्या करोगे कि एक लिस्ट बनाओगे, 5 राइट्स है ना, तो 5 मैंने तो जैसे बनाया था, कॉलम्स बनाए हुए थे, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंटेंट, ऐसा करके, और फिर उसके नीचे एग्जाम्पल दे रखे थे ताकि पता चले कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आ सकते हैं अगेन कि हाँ ये दिया हुआ है और पूछेंगे कि ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है लीगल राइट की, राइट। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ ये 5 होते हैं लीगल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो क्या होते हैं उसका मतलब समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ, है ना, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्चुअल में आपको क्या होता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होने वाले ना, आप इसमें से कुछ रट सकते हो, आपको समझना है इस वाले पर्टिकुलर। देखो, तो आपको ये मिसकंसेप्शन है कि जूरिस्प्रूडेंस में सब कुछ रटना होता है, देखो यहाँ पे समझने का भी होता है, और ये आपको समझना ही है। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव रिटन, जो 5 चीजें होती हैं राइट की, आप यहाँ से देख सकते हो, वही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंटेंट वाला। फिर अब ये है ओनरशिप। अब जैसे मैंने पोजीशन एंड ओनरशिप का वहां पे बताया था, पोजीशन के बारे में, कि वो कौन सा एनिमस कॉर्पस वाला। तो अब यहाँ पे हमारे पास ओनरशिप है, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला है। अब यहाँ पे जब आप ये करोगे ना, तो इसके अलावा आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। आपको ओनरशिप के और कितने कितने क्या क्या होते हैं ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, कैटेगरीज, ऐसे ही पोजीशन के भी होते हैं, ठीक है। तो 5-6 उधर, 5-6 इधर, तो ये आपको वहां पे शॉर्ट में लिख लेना है कि हाँ दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जो कि लिखे हुए ओनरशिप के बारे में, जो कि लिखे हुए पोजीशन के बारे में। तो ये मेरे हिसाब से एक पेज आगे का फ्रंट पेज अगर आप शॉर्ट में लिखते हो, उतने में ही बन जाएगा ये वाला टॉपिक का नोट्स। और बस फिर इसमें से कुछ भी कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो यू कैन इजीली आंसर। ये डायरेक्टली तो नहीं रिपीट होने वाला है, कुछ और दूसरे जो टाइप्स हैं उसमें से हो जाएगा, या फिर इसी टाइप्स में से इसके कॉन्सेप्ट समझे हुए होंगे, इसके एग्जाम्पल्स दे देंगे, वो उस हिसाब से आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और PYQ का मतलब यही है कि इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, instead of reading the whole book of jurisprudence as per the syllabus. Okay, now this is the types of ownership that I have mentioned in my explanation, ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसके डिटेल में किसका क्या मतलब होता है, कैसे होता है, ये सब आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर, BCD, मतलब कि लीगल एंड वेस्टेड जो होता है वो नहीं है ओनरशिप, लीगल एंड इक्विटेबल होता है। अब ये है हमारा शिफ्ट नंबर 2 2019 का ही। अब यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, यस, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसने कहा था, हु हैव सेड अबाउट दिस jurisprudence दैट इट इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब यहाँ पे तो इसका आंसर है अल्पियन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि मैंने jurisprudence के बारे में किसने क्या कहा था उसका एक पेज का ही नोट्स था, ठीक है, एक पेज भी भरा नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि jurisprudence के बारे में अल्पियन ने ये कहा, और कौन था, ऑस्टिन ने ये कहा, बेंथम ने ये कहा, केल्सन ने ये कहा, और देर आर 2-3 अजीब अजीब सा नाम ऑल्सो, जैसे कि लास्की है जिसने कुछ आईज से रिलेटेड कुछ कहा था, मैंने बस इतना याद किया था, लास्की आईज, दैट्स ऑल। जैसे कि ब्लैकस्टोन ने कहा था, जज मेड लॉ समथिंग लाइक दैट, तो जजेस ब्लैकस्टोन, ऐसे तो ऐसे ऐसे करके मैंने नोट्स बनाए थे, इतने इतने से मैं, और उससे हो गया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अब ये दिस इज अगेन, तो अब जैसे मैं वहां पे आपको बता रही थी कि थ्योरीज जब आपने पढ़े कि ये थ्योरी इस जूरिस्ट ने दी है, वहीं पे आप लिख सकते हो कि ये जूरिस्ट कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। तो जैसे आप ये जब नोट्स बना लोगे ना, तो इन 4 में से आपको कम से कम 2 पता चल जाएंगे कि हाँ
ये इंसान तो इस स्कूल से बिलोंग करता है, क्योंकि आपके पास पूरी पूरी ग्रुप है लिस्ट की कि हाँ, एनालिटिकल से ये बिलोंग करता है, हिस्टोरिकल से ये बिलोंग करता है ना। तो इस हिसाब से जब आपके पास वो लिस्ट होगी ना, तो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको वो अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा इंसान कौन से उससे बिलोंग करता है स्कूल से, और उसके हिसाब से आप कर सकते हो। नाउ द आंसर फॉर दिस इज बेंथम एनालिटिकल स्कूल से था, पुचता हिस्टोरिकल स्कूल से था, स्पेंसर सोशियोलॉजिकल स्कूल से था, और ग्रे रियलिस्ट स्कूल से था। इसको रियलिस्ट का फादर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको, प्लस जैसे अभी मैंने कहा रियलिस्ट का फादर भी कहते हैं, जिसके बारे में और आपको कुछ पता चलता है ना, कि जैसे हिस्टोरिकल का फादर भी किसी को कहते हैं, इसका भी कोई वो स्टार्टिंग था जिसकी आई थिंक सेविग्नी था, आई थिंक सो। तो सेविग्नी हिस्टोरिकल से बिलोंग करता है, और ये खुद पुश्ता बिलोंग करता है, आहेरिंग बिलोंग करता है। तो ऐसे करके आपको उसका पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल से बिलोंग करता है, क्योंकि 5 स्कूल्स हैं, वो 5 स्कूल्स तो आपको करने होते हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल स्कूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें जितने जितने आते हैं उनका उतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कूल से बिलोंग करता है। Now, this is again who said this. The law of every modern state shows as at its 1,000 point the influence of both the accepted social morality and wider moral ideals. These influences enter into law either abruptly and avoidly through legislation or silently and piecemeal through the judicial process. ये किसने कहा था? अब ये यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि ये कहा था हार्ट ने। अब जहाँ पे हार्ट का आपने नोट्स बनाया है वहीं हार्ट के सामने लिख दो, और इतना पूरी पूरी कहानी लिखने की तो जरूरत है नहीं। इसमें से आप कुछ भी उठा लो, जैसे कि पीस मिल उठा लो, या फिर मैं तो कुछ भी उठा लेती थी जो थोड़े डिफरेंट हो। ऑब्वियसली अब लॉ तो हब सब में ही आता है, तो मैं लॉ नहीं उठा सकती हूँ, बट कुछ ऐसा जो थोड़ा डिफरेंट हो इस वाले के बारे में, वो एक कोई वर्ड उठा लो, तो दैट वुड बी लाइक, अगर वो आ रहा होगा तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा ये तो हार्ट ने कहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला हो जाएगा। नाउ कम्स दिस इज अबाउट राइट। तो अब राइट जैसे कि होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट राइट्स, तो आप टाइप्स ऑफ राइट यहाँ से पढ़ सकते हो कि हाँ इसके अलावा भी कुछ होते हैं, तो वो आप सारे टाइप्स ऑफ राइट पढ़ सकते हो। परफेक्ट, जैसे यहाँ पे इम्परफेक्ट दिया हुआ है तो आप परफेक्ट भी पढ़ लो कि परफेक्ट क्या होता है। कंटेंजेंट देख लो, वेस्टेड देख लो, पर्सनल देख लो, इम्पर्सनल देख लो, प्रोप्राइटरी देख लो, ऐसे करके आप ये सब का मतलब देख लो। जैसे ये 4 दिए हुए हैं, तो ये 4 तो आप इस क्वेश्चन से ही पढ़ लोगे। इसके अलावा जो है राइट्स, वो भी आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अब यहाँ पे जैसे कि जो प्रोप्राइटरी राइट है, उसका मतलब होता है अ पर्सन्स राइट इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी। नाउ द पर्सनल राइट जो होता है वो होता है अ पर्सन्स राइट रिलेटिंग टू द स्टेटस एंड दैट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपको पर्सनल राइट होता है। जैसे कि आपने घर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो उस घर में रहना आपका पर्सनल राइट है, ऐसा। Now comes imperfect right. तो imperfect right जो होता है वो होता है right which although recognized by law is not enforceable. जो perfect right होता है वो enforceable होता है, जो imperfect right होता है वो not enforceable होता है, ऐसे याद कर लो। फिर जैसे आता है आपका contingent right। अब contingency का मतलब ही आपको पता है ऑलरेडी कि हाँ कुछ होने पे जो होगा वो contingent है, किसी चीज पे conditioned है। तो दिस इज द थिंग, द राइट विच क्रिएट डज नॉट क्रिएट इमीडिएट इंटरेस्ट, मतलब अभी तुरंत नहीं, कुछ होने पे होगा, वो है कंटिंजेंसी का मतलब ही वही होता है ना। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव रिटन कि इम्परफेक्ट राइट क्या क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। वो ये होते हैं कि रिकॉग्नाइज्ड होता है, इनफोर्सेबल नहीं होता है। पर्सनल राइट क्या होते हैं, उसको राइट एंड पर्सोना क्या कहते हैं, वो सब दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। फिर प्रोप्राइटरी राइट का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे कि प्रॉपर्टी का मैंने बताया, वैसे पेटेंट का या गुडविल का, ऐसा सब इंसान का पर्सनल राइट होता है। तो ये हो गया। फिर आपका आता है सॉरी कंटिंजेंट राइट। तो ये जैसे कि वही कंडीशनल होता है कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, उसके बेसिस पे होता है कि आपको वो मिलेगा राइट या नहीं मिलेगा। तो दैट इज नॉट इमीडिएट इंटरेस्ट गिवन। तो ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो। अब दिस इज अगेन हु सेड दिस, है ना। तो आप ये हु सेड दिस वाली लिस्ट में ऐड कर दो कि ये किसने कहा था। जैसे कि ये हमारा कहा था
सामर ने कहा था कि अ लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ अट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी। ये काफी रिपीट हुआ है, आई थिंक मेरे एग्जाम में आया था या मेरे से लास्ट ईयर में आया हुआ था, ये फिर से सेम। तो आप उसी लिस्ट में ऐड कर देना कि लॉ एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी, कुछ भी 3 वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यही लिखा था, एट्रीब्यूट लॉ एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी सामंट। तो ऐसे आप उसको ऐड कर लेना अपने हु सेड हु व्हाट लिस्ट में। नाउ दिस इज अगेन पोजीशन के बारे में, जो अभी अभी हमने पोजीशन का देखा था। तो पोजीशन जो कि अलग अलग, मैंने कहा ना कि जैसे ओनरशिप डिफरेंट डिफरेंट थे, लीगल और इक्विटेबल और वो सब, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, वैसे ही पोजीशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। उसमें से कुछ ये टाइप्स हैं जैसे कि कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मीडिएट, इमीडिएट। तो जैसे आप वो पढ़ रखे होगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो अब जैसे जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपको लिखा है कि अगर थ्रू एजेंट या फिर सर्वेंट होता है, थ्रू समबडी होता है, तो विच वन इज द टाइप ऑफ द पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल तो नहीं होगा। कॉर्पोरियल क्या होता है? कॉर्पोरियल होता है किसी टैंजिबल थिंग का, जैसे कि घर है, कार है, कुछ भी। और इनकॉर्पोरियल क्या होता है? इनटैंजिबल, जैसे कि अपना पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कोई चीज नहीं होती है ना, तो वो इनकॉर्पोरियल होता है। अब ये यहाँ पे जो एजेंट के थ्रू होता है वो मीडिएट होता है, क्योंकि थ्रू समथिंग ऐसा हो रहा है, मीडिएट। और इमीडिएट मतलब तुरंत, अपने से ही तुरंत ऐसा, ठीक है। तो ये होता है, ये हमने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है आपके लिए। मीडिएट का दिखा हुआ है, थ्रू द लैंडलॉर्ड लेट द हाउस टू अ टेनेंट, और फिर उसमें अगर कोई बीच में आता है इंसान, जैसे कि अपने ब्रोकर्स होते हैं, तो वो मीडिएट हो गया। फिर जैसे इमीडिएट क्या होता है? जो तुरंत हमने किसी से कुछ खरीदा। इससे फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी लास्ट ईयर भी। तो ऐसे आपको, ऐसे कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये है लाइबिलिटी की डेफिनेशन किसने दी है ये। देन राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी एक टॉपिक है ना। तो अब राइट्स कितने टाइप के होते हैं आपने पढ़ा, राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपने पढ़ा, राइट्स के बारे में किसने क्या कहा था, ये आप अब देख लेना। कि जैसे ये वाला डेफिनेशन जो है हमारा, ये हमारे सामने ने दिया था। तो इसके अलावा भी किसी ने अगर लाइबिलिटी का डेफिनेशन दे रखा है तो वो देख लेना, 2-3 होंगे उसमें ऐड करने के, तो वो ऐड कर देना। अब दिस इज अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। इससे आई वुड से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये एक लास्ट में आपको यूनिट्स जो लिखेंगे ना लॉ के, उसमें लास्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म करके है, बट इसके बहुत ज्यादा कंटेंट कहीं पे है नहीं। मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा था, बट हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो लेकिन आप अगर अभी इतना कम टाइम है तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये वाला आप पढ़ लेना कि हाँ पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में ये बात हमारे इन्होंने की थी, लॉयड भाई साहब ने, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट मॉडर्निज्म को ज्यादा मत, मतलब मेरे हिसाब से करना, क्योंकि इतना ज्यादा वो रिपीट नहीं होता, आने के चांसेस कम होते हैं। तो अभी जैसे कि हमारे पास कम टाइम है तो इतना ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बाकियों पे ज्यादा फोकस करना। और बस इसके साथ हमारा 2019 का शिफ्ट 2 खत्म होता है। और ये जस्ट मेरा एफर्ट था कि आपको ये पता चले, इन पीवाई क्यू जो मैं भी करा रही हूँ, आगे भी कराऊंगी, कि आपको, अब जैसे आप पीवाई क्यू अभी कर रहे होगे, बट आपको उसके बाद क्या करना है? आपको जस्ट वो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है बेसिकली। आपको उसके बारे में जो रिसर्च करनी है, जिस डायरेक्शन में कॉन्सेप्ट्स को सर्च करना है, वो मैं आपको बताना चाह रही थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, मुझे भी पहले नहीं पता था कि जैसे पीवाई क्यू कर रहे हैं तो पीवाई क्यू के नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, ये होता होगा पीवाई क्यू, बट ये नहीं होता है पीवाई क्यू। पीवाई क्यू के नोट्स ऐसे नहीं बनते कि हाँ ये इसने कहा था, ये पीवाई क्यू में हमने पढ़ा, ये हमको बार बार देखते रहना है ताकि हमें ये याद रहे और फिर से वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम वो कर ले, नहीं। इसका मतलब यही होता है कि आपने वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बारे में आप थोड़ा बहुत नोट्स, जो मैं आपको जैसे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत आपको सर्च करने को बोला, तो वो जब आप करोगे ना तो उसको पढ़ लिया कॉन्सेप्ट। फिर जब आप नोट्स अगर बना रहे हो, अभी कम टाइम है फिर भी, अगर आप शॉर्ट स्टूडेंट्स के लिए तो आपको रिवाइज करने की थोड़ी जरूरत पड़ती है, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एकदम इन शॉर्ट उस पेज पे टू द पॉइंट वर्ड वर्ड में लिख के उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो। अब जैसे कि यही 2 साल का ले लो आप, आगे मैं अभी 2 साल और कराने वाली हूँ, 3 साल 20 21 22 भी कराऊंगी, जो अभी रिसेंटली होकर गया है। तो आप अगर अभी इन दोनों का भी देख लो तो इसके हिसाब से भी जितने कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं, जैसे कि हमारा पोजीशन हुआ, ओनरशिप हुआ, स्कूल्स हुए, थियरीज हुई, बुक्स हुई, और ये मेजरली राइट्स, ठीक है। तो ये जो मेजरली सब कुछ जो कवर हुआ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी यस थियरीज, तो ये जितना कवर हुआ ना, इतना इसके जितने आपको मैंने बताए हैं ना करने को, उतने के आप अगर नोट्स बना के रेडी करो
तो that would be very very much like you would be like 40% डन फॉर योर एग्जाम जो भी आने वाला है. तो इस तरीके से आप अगर शुरू करोगे अभी, तो आई एम श्योर कि अगर आप आने वाले सीरीज को भी फॉलो करोगे तो आपका पूरा का पूरा PYQ डन हो जाएगा. So I'm sure that would be very, very beneficial for the upcoming examination. So I hope this video helped you a lot, and I will meet you in the next video with part 2 of jurisprudence, जिसमें मैं 2020, 2021 and 2022 तीनों के PYQ jurisprudence के शेयर करूंगी part 2 of jurisprudence में, and then we will start with the PYQ of constitution law. And इस तरीके से I think मैं 10 to 15 डेज, हाँ 15 डेज के अंदर आपको पूरे जो 10 यूनिट्स हैं इसके PYQ दे पाऊँ. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करूँ इस वाले सीरीज को, और आपको ये पूरा PYQ का सीरीज जल्दी से जल्दी मिल सके ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सके, फिर रिवाइज भी करना, एग्जाम पास है. तो दैट्स इट. सो थैंक यू सो मच. Don't forget to like, share and subscribe this video. Meet you soon. Thank you.